Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today and that is about India's climate, vegetation and wildlife. तो हम पढ़ेंगे इंडिया का क्लाइमेट, वेजिटेशन कैसा होता है यहाँ पे और यहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है. सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव, वेदर एंड क्लाइमेट, फीचर्स ऑफ इंडियाज़ क्लाइमेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ climate, season in India, natural vegetation in India, importance and protection of forest and India's wildlife. So being a vast country, India experience different types of weather and climatic condition. क्योंकि ये बहुत बड़ी कंट्री है तो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के climatic conditions हैं और weather हैं. The vast extent of country and varied landforms contribute to this variety. We have hot desert and cold desert, high mountains, plains, maritime climates as well as extreme climate, very high rainfall areas as well as very low rainfall areas etc. तो हमारे पास यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्लाइमेट है. कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं बहुत कम बारिश होती है, कहीं ठंड होती है, कहीं गर्मी होती है, ठीक है, कहीं एक्सट्रीम हॉट होता है, कहीं एक्सट्रीम कोल्ड है, ठीक है. सो वी हैव लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ इन द लैंड फॉर्म एंड द climatic condition. Then the variety in climatic influence the flora and fauna, the physical features and life of the people of India. तो यही जो वैरायटी है ये हमारी लाइफ को और फ्लोरा फोना को करती है अफेक्ट. देन weather and climate. Weather refers to the sum of the total of the day to day changes in the climatic condition, temperature, rainfall, winds, humidity, sunshine and cloudiness of the atmosphere at any place. तो वेदर होता है एक डे टू डे का फेनोमेनन की कभी धूप निकल रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी हवा चल रही है, कभी ह्यूमिडिटी, कभी एकदम ड्राई रीजन, वो ड्राई एयर है, ठीक है. तो यही होता है एयर वेदर. देन weather is never static in the same city, even over a small area. Weather can be vary tremendously and it can be sunny in one part of the city and while raining heavily in the other part. तो ये tremendously change होता रहता है. एक ही शहर में एक जगह पे कहाँ धूप निकली हो या दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, ठीक है. तो यही होता है weather. Then next we have climate refers to the average weather condition prevailing at a place record over a long period of time. Thus climate is generally defined as the average state of weather condition like temperature, rainfall, winds, humidity, sunshine and cloudiness over a long time period. For a climate average, a minimum period of 35 years is desirable. तो climate होता है और when we count the weather for over a long period of time, यानी लंबे period of time के लिए जब हम climate को weather measure करते हैं, that is called climate. यानी ये stable रहता है, एक लंबे समय तक stable रहता है. over the 35 years तक ये desirable एक जैसा रहता है. Then we have difference between weather and climate. Weather refers to day-to-day condition of the atmosphere at any place. Weather changes occurs over a small area and weather data is obtained through direct observation by using various instruments. ठीक है, तो weather जो है day to day condition है, ये small area cover करता है और ये हमें various instruments से हम पता लगा लेते हैं. Climate refers to average weather condition over a long period of time and climate changes over a long area and climate is determined by systematic observation, recording and processing of the various weather data collected over a long period. तो क्लाइमेट होता है जो कि एक एवरेज लॉन्ग पीरियड के लिए हमें वेदर एवरेज देता है और ये एक लार्ज एरिया कवर करता है, ठीक है. और ये एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है क्योंकि हमें कंटिन्यूसली क्या मेंशन, हमें ये रिकॉर्ड में रखना होता है कि अभी कैसा क्लाइमेट, अभी कैसा क्लाइमेट, ठीक है. तो इसको हमें रिकॉर्ड में रखना होता है, ये सिस्टमेटिक वे से होता है. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल. इट इज़ सो बिकॉज इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ऑल्दो इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मानसून विंड्स. तो क्लाइमेट जो है इंडिया का वो ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी है, कहीं बहुत गर्मी है, कहीं कम गर्मी है, ठीक है. और ये सब डिपेंड करता है मानसून विंड्स पे. एंड देयरफॉर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ऑफन कॉल्ड द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. इसलिए क्लाइमेट ऑफ इंडिया को बोलते हैं मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. देन वी हैव फैक्ट चेक. The word monsoon is derived from an Arabic word mausium which means season. तो word जो है ये monsoon, ये Arabic word है, Arabic word से लिया है mausium से, जिसका मतलब है season, ठीक है. Then we have features of India climate. Climate of India is influenced by the monsoon wind. The interior parts of India experience the extreme of climate. Here summers are hot and winters are cold and the coastal area have mild and moderate climate due to the effects of oceanic
wave. These areas are neither very hot or nor very cold. तो जो हमारा इंटीरियर पार्ट है इंडिया का, नदन आप देखेंगे, नदन प्लेन्स आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्सट्रीम हॉट होता है, एक्सट्रीम कोल्ड होता है। लेकिन जो हमारा कोस्टल एरिया है, इंटीरियर पार्ट्स मतलब बहुत हॉट क्लाइमेट देखता है और हॉट जो कोल्ड क्लाइमेट भी वो देखता है, ठीक है। और वहीं जो हमारे कोस्टल एरिया वहाँ पे क्लाइमेट रहता है मॉडरेट, ना बहुत सर्दी ना बहुत गर्मी। ड्यूरिंग समर इंडिया रिसीव्स मोर रेनफॉल, द मॉनसून winds blowing from sea to land bring heavy rainfall in the country, and during winters India remains cold and dry because at that time winds blow from land to sea। तो समर में हम देख सकते हैं कि इंडिया में बारिश होती है, क्योंकि समर होते हैं तो बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होता है तो बारिश अच्छी खासी होती है। लेकिन वहीं जो विंटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं, एकदम कोल्ड एंड ड्राई होते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर मेनली डिपेंड्स ऑन मानसून। गुड मानसून मीन एडिक्वेट रेन एंड गुड क्रॉप। तो इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो मीन्स मेनली जो है मानसून पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट, फॉलोइंग आर द वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इंडियन क्लाइमेट। लैटिट्यूड एक्सटेंट, तो इसका पहला जो फैक्टर है जो कि इसको अफेक्ट करता है वो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। इंडिया इज वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स वाइड क्लाइमेट वेरिएंस, क्योंकि हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो हमारा एक्सटेंट है वाइडली वो काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से ये हमारे पास वेरिएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इंडिया इज सिचुएटेड बिटवीन 88 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द इंडिया एंड डिवाइड्स द country into two equal halves. Its southern part lies near the equator while the northern part remain away from the equator. It shows the southern half of India in the torrid zone and the northern half of India is the temperate zone. Thus the climate marked by two distinct seasons, summer and winter. तो हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, और जो हमारा सदर्न पार्ट है वो है इक्वेटर के पास, तो वो हमेशा बहुत गर्म रहता है। और जो नदर्न पार्ट है वहाँ पे क्या होता है, ठंड भी होती है, अच्छी खासी सर्दी भी पड़ती है, क्योंकि वो इक्वेटर से काफ़ी दूर है। जो नदर्न पार्ट है उसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं और सदर्न पार्ट को हम कहते हैं टॉरिड जोन, ठीक है। Then second we have distance from sea. The long coastline influence the coast climate of India and has a moderating influence on the climate of coastal area. Areas in the interior of India have extreme of climate. तो जो long coastline area है वहाँ पे हमारा moderate जो रहता है वेदर रहता है, ठीक है। और जो इंटीरियर इंडिया है वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है। ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ प्लेस ऑल्सो अफेक्ट इट्स टेम्परेचर। ऑल्टीट्यूड्स का भी मतलब कितने हाई ऑल्टीट्यूड्स किसी कंट्री में लाई करते हैं तो इसका भी फर्क पड़ता है। इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ अ प्लेस एज टेम्परेचर डिक्रीज विद increasing height, and places located in the mountain region are cooler than the places on the plain. तो जितना ज़्यादा जो माउंटेन्स होंगे वहाँ पे क्या होगा, जितना हम ऊंचे पे जाएंगे वहाँ पे ठंड होगी, बर्फ़ होगी, ठीक है। और जितना हम प्लेन्स में रहेंगे वहाँ होगी गर्मी। तो यहाँ से भी हमें लैटिट्यूडनल से भी ऑल्टीट्यूड से भी हमें वेरिएशंस देखने को मिलता है। Then we have northern mountains. The Himalaya mountains separate India from the rest of Asia and they act as protective barrier against the bitter cold winds from Central Asia. तो जो हिमालय है वो हमें सेंट्रल एशिया से आने वाली बहुत ही ठंडी हवाओं से हमारे लिए बैरियर का काम करते हैं, रोकते हैं उनको। And thus these lofty mountains form a barrier and affect the climate of India. It also trap the monsoon winds, and in this way these mountains also play a significant role in bringing copious amount of rainfall in the Indian subcontinent. तो यही जो माउंटेन्स है ये हमारे लिए बैरियर का काम करते हैं, हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। और ये सेंट्रल एशिया से बहुत ठंडी हवाओं को आने से हमारे पास रोकते हैं और ये हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। Then we have monsoon winds. These winds bring heavy rainfall in the country during summer. ये heavy rainfall लेके आती हैं, and while in the winters they bring less rainfall. This is because they do not contain moisture during winter. और सर्दियों में बारिश कम क्यों होती है, क्योंकि उस टाइम पे ना विंड्स में मॉइस्चर नहीं होता है। गर्मियों में ज़्यादा मॉइस्चर होता है क्योंकि वाटर वेपर बहुत होता है तो बारिश होती है, और वो सर्दियों में ड्राई होता है सब, है ना। तो वाटर वेपर नहीं होगा तो
बारिश नहीं होगी। देन वी हैव सीजन इन इंडिया। इंडिया एक्सपीरियंस 4 डिस्टिंक्ट सीजन ड्यूरिंग द ईयर। दे आर विंटर, समर, मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून। तो 4 मेन सीजन होते हैं, विंटर, समर, मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून। देन वी हैव फर्स्ट इज विंटर। द विंटर सीजन प्रिवेल्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होता है विंटर एंड द टेम्परेचर आर क्वाइट लो, -5 डिग्री to 15 degree Celsius in the northern India. Then while 25 degree Celsius temperature is found in the southern part of the country, तो -5 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक का टेम्परेचर रहता है विंटर्स में नदर्न इंडिया का, ठीक है। और वहीं जो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहाँ रहता है, सदर्न कंट्री में, यानी जो साउथ हमारा है वहाँ पे। ड्यूरिंग विंटर्स डेज आर शॉर्टर वाइल नाइट आर लॉन्गर, कूल एंड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं। The lowest temperature is found in the northern plains of India since it is very far away from the moderating effects of the sea. तो lowest temperature क्योंकि northern India में ही देखा जाता है, क्योंकि ये समुद्री एरिया से, समुद्र के आसपास का जो एरिया तो ना, वहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ना सर्दी होगी ना गर्मी होगी। लेकिन जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट्स को वो फेस करेंगे एरियाज, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ड्यू टू इट्स नियरनेस टू द सी एंड इक्वेटर, द डेक्कन प्लेट्यू रिमेन्स वार्म एंड कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस अ मॉडरेट क्लाइमेट ड्यूरिंग द सीजन। और वहीं जो, क्योंकि हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो नीचे इंडियन ओशन है, इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल है, तो तीनों साइड से क्या है कि वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। देन समर, द समर आर हॉट सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम द अराउंड मार्च एंड लास्ट टिल टू द एंड ऑफ मे। तो समर होती है मार्च से मई तक एंड इन दिस सीजन द सन रेज फॉल मोर और लेस डायरेक्टली ऑन दिस रीजन एंड द टेम्परेचर क्रॉसेस 30 डिग्री सेल्सियस इन द मंथ ऑफ मार्च एंड गोज अबव 40 डिग्री सेल्सियस इन May. Hot and dry winds also called Lu blow in the northern plains in this season. ठीक है। तो समर होती है यहाँ पे मार्च से और मई तक, और यहाँ पे 30 डिग्री से 40 डिग्री तक होता है टेम्परेचर, ठीक है। और जो गर्म विंड्स चलते हैं उनको कहते हैं हम लू। नेक्स्ट आप देखेंगे, इन दिस सीजन द हाईएस्ट टेम्परेचर इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन एंड द डेक्कन प्लेट्यू इज रिलेटिवली कूलर ड्यू टू इट्स ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सर्दी गर्मियों में नॉर्दर्न प्लेन्स में ज़्यादा गर्मी होती है और डेक्कन प्लेट्यू में नॉर्मल ठंडा रहता है, क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड्स पे है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न प्लेन्स। देन वी हैव इन्फो, local thunderstorm associated with violent winds, torrential downpours and hail are coming during the summer season in the states of Assam and West Bengal. These are called Kalbaisakhi, and along the coastal area of Kerala they are known as mango showers. तो थंडरस्टॉर्म जो होते हैं वो उनको जो कि मतलब अपने साथ थोड़ी थोड़ी बारिश लेके आते हैं, ठंडी हवा लेके आते हैं ना, मतलब टोरेंशियल विंड्स लेके आते हैं, तो उनको असम और वेस्ट बंगाल में कहते हैं कल बैसाखी एंड इसको केरला में कहते हैं मैंगो शावर्स। Then we have monsoon. Monsoon starts from mid-June and lasts till about the end of September. Monsoon mid-June से लेकर सितंबर तक end हो जाता है. The rainy season begins with the arrival of southwest monsoon, and in fact the monsoon winds blow from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the Indian mainland. तो यहाँ पे जो रेनी सीजन है ये स्टार्ट होता है अराइवल, जैसे ही साउथ वेस्ट मानसून का अराइवल होता है वैसे ही ये जो रेनी सीजन है ये एंड पे आ जाता है. Then when these moisture carrying wind strike and the mountain barriers, rainfall occurs. In this season the low atmospheric pressure exists over the northern plains. तो यहाँ पे low atmospheric pressure बना रहता है northern plains में. This pressure is enough to attract the moisture bearing winds from the Indian Ocean also. और यही जो आपका है ना atmospheric pressure, यही Indian Ocean की तरफ से और मॉइस्चर वाली जो एयर होती है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. देन ड्यू टू द ट्रायंगुलर शेप ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, द इन साउथ वेस्ट मानसून विंड्स are divided into two branches, the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. तो जो क्योंकि हमारा जो नीचे वाला डेक्कन प्लेट्यू है ये ट्रायंगुलर शेप में है, तो यहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून आता है ये दो ब्रांच से आता है, यानी अरेबियन सी से भी आता है और बे ऑफ बंगाल से भी आता है. Then we have fact check. Sudden and dramatic arrival of the monsoon winds are known as burst of monsoon. एकदम से मानसून आ गया तो उसको बोलते हैं burst of monsoon. Then you can see the मैप ऑफ इंडिया हेयर, यहाँ पे आपको बताया हुआ है, ठीक है.
कि कहाँ से कौन सी विंड्स चल के आती हैं, ठीक है। ये जो आपको रेड लाइन दी है ये विंड्स को डोनेट कर रही है। फिर branches of southwest monsoon, Bay of Bengal branch, it branch heavy rainfall and to Ganga Brahmaputra delta and northeast hills, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से आती हैं। Then second points we have Masin Ram in Meghalaya, the station of world's highest rainfall, receive its rainfall from its this branch, ठीक है। तो मासिन राम जो है मेघालय में, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे ही होती है। एंड द रेनफॉल डिक्रीज एज द winds blow westward into the northern plains. Then we have Arabian Sea branch. It brings heavy rainfall to the windward side of the Western Ghats. तो ये अरेबियन सी आती है वेस्टर्न घाट्स की तरफ से, ये जो विंड्स आती हैं। एंड वाइल द एरिया ऑफ डेक्कन प्लेटू लाइज ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव लेस रेनफॉल। और ये जो डेक्कन प्लेटू का जो एरिया है ये लीवर्ड साइड है, तो ये वेस्टर्न घाट से यहाँ पे कम बारिश होती है। इट डज नॉट गिव मच रेनफॉल टू राजस्थान, राजस्थान में ये ज़्यादा बारिश नहीं कराते हैं, ठीक है। एंड दीज मानसून विंड्स ब्लो पैरेलल टू द अरावली रेंज एंड देयर इज अ डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल एज इट मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जैसे हम नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो बारिश कम होती चली जाएगी, ठीक है। देन वी हैव रिट्रीटिंग मानसून, दिस मानसून इज ऑल्सो नोन एज ऑटम, इसको ऑटम भी बोलते हैं। एंड इट स्टार्ट्स विद द रिट्रीट ऑफ द मानसून अराउंड द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड कंटिन्यू टिल द नवंबर। तो ये स्टार्ट होता है अक्टूबर से और नवंबर तक ऑटम रहता है। एंड द मानसून विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल, तो मानसून विंड्स मेन लैंड से और बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। द टेम्परेचर begins to decrease in the northern plains and therefore the low pressure in the plain area is no longer strong enough to attract the monsoon winds। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे विंड्स वापस जा रही हैं तो क्या लो प्रेशर जो क्रिएट हो रहा था वो अब क्रिएट नहीं हो रहा और इस वजह से बारिश कम हो जाती है। एंड ड्यू टू दिस रीजन द मानसून विंड्स रिट्रीट फ्रॉम द मेन लैंड, फिर ये मेन लैंड से जाते हैं वहाँ पे रिट्रीट होती हैं। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड दस लेक ऑफ मॉइस्चर एंड रेनफॉल। ये लैंड जब सी टू लैंड जब वेव्स चलती हैं तो उनमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है और जब लैंड टू सी चलती हैं तो उनमें लेस ऑफ मॉइस्चर होता है। व्हेन दीज विंड्स क्रॉस द बे ऑफ बंगाल दे अब्सॉर्ब प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर बिकॉज they have heavy rainfall in the southern parts of India, particularly in Tamil Nadu and Andhra Pradesh region। जब ये बे ऑफ बंगाल को क्रॉस कर रही होती हैं तो यहाँ पे बहुत सारा पानी ये लेते हैं जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में काफ़ी बारिश होती है। समटाइम्स साइक्लोन स्ट्राइकिंग ड्यूरिंग द सीजन, इट इज़ क्वाइट कॉमन इन द कोरोमंडल कोस्ट, ये कोरोमंडल कोस्ट में काफ़ी आसान है जो कि तमिलनाडु में है। एंड दीज साइक्लोन कॉस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन एंड इवन लेड टू द लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कई बार तूफान भी आ जाता है, जो समुद्री तूफान होता है वो भी आ जाता है, तो इससे लॉस ऑफ लाइफ भी होता है। ऑरल क्वेश्चन, लिस्ट द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द इंडियाज क्लाइमेट। तो अभी हमने पढ़ा कि इंडिया क्लाइमेट को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो उसकी आप यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे। एंड व्हाट आर द 4 सीजन ऑफ इंडिया, तो 4 सीजन्स के बारे में हमने पढ़ा, वो आप यहाँ पे इनका आंसर करेंगे, ठीक है। द नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, द ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज विच ग्रोज ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स आर नोन एज नेचुरल वेजिटेशन एंड ऑल ऑफ दीज वेजिटेशंस आर कलेक्टिवली नोन एज फ्लोरा। सो नेचुरल वेजिटेशन इज द नेशनल wealth of a country and today more than half of the land is used for agriculture activities. Nowadays land is also used to fulfill various human needs such as fuel, food, medicines and etc. But presently people are exploiting the natural plants cover of India. So नेचुरल वेजिटेशन होती है जो बिना किसी ह्यूमन एफर्ट्स के अपने आप ही नेचुरली ग्रो कर जाती है, जैसे बेसिकली जंगल जो होते हैं उनमें हमने कोई एफर्ट नहीं किया, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं फ्लोरा, ठीक है। और ज़्यादातर जो हमारा मेन लैंड है इंडिया का उसको हम कृषि के लिए यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, बट उसके अलावा जो हमारा लैंड है, जो हमारे फ्लोरा हैं उनको हम रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है। और जिसमें हम कोई भी अवैध काम जहाँ पे नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये फ्यूल, मेडिसिन, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं फ्लोरास को। फैक्ट चेक, इंडिया हैज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, देयर आर अबाउट 47,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड अबाउट 15,000 स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया। तो इंडिया में कम से
से कम 47,000 स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की, और 15,000 जो स्पीशीज़ हैं वो है प्लांट्स बियरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जिनमें फ्लावर आते हैं, ठीक है. देन वी हैव टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. देन द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन लार्जली डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन, relief, soil, etc. As the climate of India is tropical, a huge portion of the country has tropical type of vegetation, and only the Himalayan region support the temperate type of vegetation. The natural vegetation of India can be divided into 5 types, that is tropical rainforest, tropical deciduous forest, desert vegetation, mountain vegetation and mangrove forest. तो हमारा जो natural vegetation है वो हमारा काफ़ी widely है, और ये mainly 5 तरह का होता है, जिसमें है tropical rainforest, tropical deciduous forest and tropical vegetation, mountain vegetation and mangrove forest. तो अब हम जानेंगे एक एक इनके बारे में. Tropical rainforest, these forests are in the area which रिसीव हैवी रेनफॉल. तो ये हैवी रेनफॉल होते हैं ट्रॉपिकल में, ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिक जोन में आता है, इक्वेटर नियर इक्वेटर वाले जोन में आता है, एंड विच इज़ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है और हॉट और ह्यूमिड होता है बहुत ज़्यादा. दिस इज़ मेनली स्प्रेड इन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, दैट इज़ वेस्टर्न केरला, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, लोअर पार्ट्स ऑफ हिमालयन हिल्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. दीज फॉरेस्ट एरिया आर वेरी डेंस्ड. तो कहाँ कहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसली फॉरेस्ट है? महाराष्ट्र में है, वेस्टर्न केरला में है, तमिलनाडु, ठीक है, हिमालयन हिल्स पे हैं, एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, अंडमान निकोबार में है. मैनी स्पीशीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स एट देयर टाइम ऑफ द ईयर. एज अ रिजल्ट these forests always appear green. तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं इन दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ज़्यादातर ट्रॉपिक रीजन में क्या होता है कि या तो पेड़ अपने ट्रीज़ को शेड करते ही नहीं, और करते हैं तो डिफरेंट टाइम पे करते हैं, ठीक है. तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो फॉरेस्ट हैं ये ग्रीन अपेयर होते हैं, क्योंकि कभी कोई पेड़ शेड कर रहा है, कभी कोई पेड़ शेड कर रहा है, तो उससे क्या है बहुत ज़्यादा एकदम बंजर नहीं दिखाई देता, तो ऑलमोस्ट ये पूरा टाइम ग्रीन ही दिखाई देते हैं. दैट इज़ वाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन फॉरेस्ट, एंड टॉल एंड एवर ग्रीन trees are found in these forests. These forests are home of hardwood trees, rubber, bamboo, ironwood, mahogany, palms and cane, coconut, ebony, rosewood, sal etc. are the main trees of this forest. तो यहाँ पे कौन कौन से trees पाए जाते हैं? like rubber trees, bamboo, ironwood, mahogany, palm, cane, coconut and ebony, rosewood. ऐसे बहुत सारे trees ऐसे tropical regions में पाए जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा dense होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा घने होते हैं. Tropical deciduous forest. A large part of India has tropical deciduous forest. Then these are also known as the monsoon type of forest. तो ये monsoon type of forest तो इनको tropical deciduous भी बोलते हैं. They are found in the area which have an average rainfall of 70 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे जहाँ पे एवरेज बारिश होती है ना, तो वहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. दीज फॉरेस्ट आर लेस डेंस एंड शेड देयर लीव्स वंस इन अ ईयर. तो ये जो फॉरेस्ट है ये साल में एक बार अपने पेड़ों की पत्ती गिराते हैं, और ये लेस डेंस होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा घने नहीं होते हैं. दीज फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ऑन द लोअर स्लोप्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन. तो ये कहाँ मिलते हैं? लोअरली हिमालयन माउंटेन पे मिलते हैं और डेक्कन प्लेट्यू में. एंड दैट इज़ वाई दे आर फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा. महुआ, शीशम, सेमुअल, टीक, साल, पीपल, नीम, सैंडलवुड एक्सेट्रा आर द मेन ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट. तो ये यहाँ पे इन पर्टिकुलर स्टेट्स में ये पाए जाते हैं, और कुछ पर्टिकुलर ट्रीज के नाम जो दिए हैं वो यहाँ मिलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट में. देन डेजर्ट वेजिटेशन. डेजर्ट वेजिटेशन इज फाउंड इन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड इन फ्यू पार्ट्स ऑफ peninsular plateau. Short shrubs and thorny plants like acacia, khair, cactus, kikar, khajuri, etc. are its main vegetation. तो यहाँ पे डेजर्ट वेजिटेशन में जो डेजर्ट में जो पाए जाते हैं उन्हीं को डेजर्ट वेजिटेशन बोला गया है, ठीक है. ये मेनली कहाँ है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में डेजर्ट है, देखने को मिलता है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, तो ये यहीं पाए जाते हैं, ठीक है. और कुछ फ्यू पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू में मिलते हैं ये. और कौन कौन सी वेजिटेशन यहाँ पे मिलते हैं? कैक्टस, केकर, खजूरी, खेर, ये सब यहाँ पे मिलता है. एंड क्लाइमेट ऑफ दीज एरियाज में remains dry and hot almost throughout the year. The areas having desert vegetation receive scanty rainfall, about 50 centimeter to 100 centimeter. The leaves of these forest
ट्रीज आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस एंड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादातर गर्मी रहती है, सूखा रीजन रहता है, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और जो ये वेजिटेशन है, डेजर्ट वेजिटेशन है, ये थ्रोनी होते हैं, इनमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, बारिश बहुत ही कम होती है यहाँ पे। द प्लांट्स हैव थिक bark and deep root which help them to absorb water from deep inside the earth and prevent loss of moisture, and hence these trees and shrubs are able to withstand and survive in the extremely hot and dry condition। तो plants जो होते हैं यहाँ पे काफ़ी thick bark होता है, उनका जो bark होता है काफ़ी thick होता है, deep roots होते हैं, तो जाके deep roots होंगे तो वो soil से moisture को absorb कर सकेंगे, ठीक है। और यहाँ पे extreme hot होता है और extreme यहाँ पे dry region ये माना जाता है। Then we have mountain vegetation. The type of forest in mountain region depends on altitude because ऑफ द टेम्परेचर डिक्रीज व्हेन द हाइट इंक्रीज, ठीक है। तो माउंटेन का वेजिटेशन जो है ये ऑल्टीट्यूड्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर नीचे आता जाएगा। और जो बहुत सारे हिमालयन जो इनर हिमालयाज हैं, जो बहुत ऊंचे हिमालयाज हैं, तो वो तो हमेशा थ्रू आउट द ईयर वो बर्फ़ से ढके रहता है, तो वहाँ तो वेजिटेशन हो ही नहीं सकती। लोअर हिमालयाज में थोड़ी बहुत वेजिटेशन होती है, ठीक है। देन दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन माउंटेनियस एरियाज ऑफ इंडिया। हिमालय माउंटेन आर द होम ऑफ माउंटेनियस फॉरेस्ट। तो हिमालय माउंटेन है माउंटेनियस फॉरेस्ट का घर, यानी माउंटेनियस फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे? हिमालयन माउंटेन में। अ वाइड रेंज ऑफ वेजिटेशन स्पीशीज इज फाउंड इन द माउंटेन अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन हाइट। तो यहाँ पे वाइडली रेंज मिलती है स्पीशीज की, बहुत सारे स्पीशीज यहाँ मिल जाते हैं। एज वी नो विद इंक्रीज इन हाइट द टेम्परेचर फॉल्स। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यानी पहाड़ों पे जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, तभी वहाँ ठंड होती है। दीज फॉरेस्ट एक्सपीरियंस ह्यूमिड एंड temperate climate and it receives रेनफॉल ऑफ अबाउट 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ह्यूमिड और टेम्परेट क्लाइमेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, और बारिश यहाँ पे 75 टू 100 सेंटीमीटर मतलब मॉडरेट बारिश यहाँ पे होती है। द डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड एट द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स वाइल बिटवीन 1000 मीटर टू एंड 2000 मीटर ऑफ एलिवेशन। द टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट आर found sal, oak, chestnut, chair, pine, deodar and fir, spruce etc. are the most significant trees of these mountain। तो deciduous forest यहाँ पे फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेन ट्री साल, ओक, चेस्टनट, चेर, पाइन, देवदार, फिर ये पाए जाते हैं। At an altitude of 1500 मीटर टू 3000 मीटर द कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड। तो यहाँ पे जैसे हम और ऊपर जाएंगे 1500 मीटर पे जाएंगे, 3000 मीटर तक जाएंगे, तो वहाँ पे कॉनिफेरस जो ट्रीज होंगे वो मिलेंगे, यानी ऊपर से कोन टाइप में होंगे, ठीक है। एंड द ट्रीज दैट आर कोनिकल इन शेप आर कॉल्ड कॉनिफेरस ट्रीज, मतलब जो ऊपर से कोन शेप में होते हैं उनको कॉनिफेरस ट्रीज कहते हैं। अल्पाइन वेजिटेशन इज फाउंड अबव 3500 मीटर। इन अल्पाइन वेजिटेशन ग्रास एंड फ्लावरिंग बुशेज आर फाउंड। तो अल्पाइन वेजिटेशन में आपको ग्रास और फ्लावरिंग बुशेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको कॉनिफेरस ट्रीज की फोटो दी गई है, आप देख सकते हैं कि इस तरह की कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं कहाँ पे? हिमालयन माउंटेन्स में। Then mangrove forest. Mangrove forest are found in swampy areas which are washed by tidal waters। तो ये होते हैं swampy यानी बहुत गीली मिट्टी जो होती है वहाँ पे ये देखने को मिलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। और टाइडल वाटर्स जो यानी टाइड्स जो आती हैं, वेव्स जो आती हैं, वो वाला पानी यहाँ पे इनको washed करता है, ठीक है। These forests are also known as tidal forest and these areas experience mild climate and heavy rainfall। यहाँ पे climate mild होता है और बारिश बहुत ज़्यादा होती है। These forests have tropical type of vegetation and the roots of the trees of these forests remain submerged in water। तो इन जो मैंग्रोव फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं इनके रूट्स पानी में सबमर्ज होती हैं, ठीक है, पानी में एकदम डूबी हुई रहती हैं। एंड दे ग्रो वेल इन सलाइन वाटर। सुंदरी इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रीज ऑफ टाइडल फॉरेस्ट। सुंदरबंस ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इन वेस्ट बंगाल आर नेम्ड आफ्टर सुंदरी ट्री। तो सुंदरी ट्री जो है ये सबसे अच्छा मैंग्रोव फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है, और ये कहाँ पे देखने को मिलता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, और इसी के नाम पे सुंदरबन डेल्टा और सुंदरबन फॉरेस्ट को नाम दिया गया था। These are found in the deltatic parts of the rivers Ganga, Brahmaputra, Krishna, Godavari, Mahanadi and in the Andaman and Nicobar Islands। Then we have info, the roots of some mangrove trees extend vertically above the surface। तो कुछ मैंग्रोव ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो वर्टिकली होती हैं सरफेस से, and these
special roots have pores which enable the tree to breathe when the other roots are submerged under the water during the tide, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल जो इसके रूट्स हैं ये ट्री को ब्रीथ करने में हेल्प करती हैं, जबकि बाकी जो होते हैं वो सबमर्ज हो जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर अ रिच सोर्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वेरी यूजफुल। फॉरेस्ट आर नेचुरल गिफ्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड दे प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ। तो हमें फॉरेस्ट को करना चाहिए क्या, सेफ। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। एंड फॉरेस्ट रिड्यूस द सॉइल इरोजन बाय कंट्रोलिंग एक्सेसिव रन ऑफ एंड दिस is because the roots of plants bend the soil, ठीक है। तो ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं, यानी मिट्टी को इरोज होने से रोकते हैं, ये मिट्टी को पकड़ के रखते हैं जिससे कि मिट्टी हवा पानी के साथ उड़ के या बह के नहीं जाती है। Then the forest provides shelter for the wild animal, ये wild animal का shelter है। The forest help in precipitation by solving moisture through the process of transpiration, तो ये हमें precipitation यानी बारिश की प्रक्रिया में help करते हैं। Forest provide shelter for the tribal people, ये tribal people का shelter है forest, and forest increase the fertility of soil by adding humus, ठीक है। और हमें ये fertility हम इसकी soil की बढ़ा सकते हैं इसमें humus add करके। Then oral type question, लिस्ट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। अभी हमने देखा कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं इंडिया में, एंड लिस्ट सम कॉनिफेरस ट्रीज, और कुछ कॉनिफेरस ट्रीज के आपको लिखनी है नाम। द नेचुरल वेजिटेशन इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू द रेकलेस cutting of trees, so we should take care of our forest and adopt some measures of this regard. We should plant more and more trees, we should protect the existing trees, we should make people aware of the importance of the trees, and we should take initiative in the special program like Van Mahotsav, so that a large number of people could be involved in making our earth ग्रीन। तो हमें पेड़ों को बचाने के लिए करने चाहिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स, कुछ हमें करने चाहिए स्पेशल स्टेप्स, जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ों को कटने से रोक सकते हैं, ठीक है। लोगों को पेड़ों की इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, और हम वन महोत्सव जैसे जो डेज हैं वो वर्ल्ड वाइडली सेलिब्रेट कर सकते हैं। देन फॉरेस्ट आर आर नेशनल वेल्थ एंड शुड बी प्रोटेक्टेड। नॉट ओनली शुड द लार्ज स्केल फेलिंग ऑफ ट्रीज बी स्टॉप्ड, बट एफर्ट शुड बी मेड टू प्लांट मोर एंड मोर trees and conserve the environment, and the government of India has initiated many programs to conserve and protect forest and wildlife। तो हमें फॉरेस्ट जो है हमारी वो नेशनल वेल्थ है, ठीक है, और हमें इनको ऐसा नहीं कि सिर्फ जो पेड़ हैं उनको कटने से बचाना चाहिए, बल्कि और पेड़ भी हमें लगाने चाहिए। और इसके लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उनमें सरकार की मदद करनी चाहिए। इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ, इंडिया हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, मैमल्स, फिशेज, insects and worm etc. These animals are collectively known as the wildlife and fauna of a country। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ हैं, जो एनिमल्स हम कहते हैं उनको हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, कोई रेप्टाइल्स है, कोई फिशेज है, कोई इंसेक्ट है, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं फोना। तो हमने पढ़ा था फ्लोरा और फोना के बारे में, हम पढ़ेंगे। तो फ्लोरा क्या है, प्लांट्स, और फोना क्या है, एनिमल्स है। एंड दस इट कैन बी सेड दैट फोना ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू द फॉर्म्स ऑफ एनिमल इन द कंट्री। तो फोना को हम कह सकते हैं दैट काइंड ऑफ एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर कंट्री, दैट इज कॉल्ड द फोना ऑफ द कंट्री, ठीक है। देन नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे fact check. India has about 89,000 species of animals and 1200 species of bird। तो इंडिया में कम से कम 89,000 species of animals पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में हो सकते हैं, and 1200 species of birds मिलते हैं। Animals, a large number of mammals are also found in the India, the rhinoceros, wild buffalo, elephants and are the main mammals of India, ठीक है। तो mammals वो होते हैं जो अपने young ones को बर्थ करते हैं, और दो तरह की कैटेगरी होती है, तो अपने बेबीज अपने एग्स को ले करते हैं, और एक होते हैं अपने जो यंग वंस को बर्थ करते हैं। तो मैमल्स हम उनको बोलते हैं जो यंग वंस को बर्थ करते हैं, जैसे हम ह्यूमन हैं, हम भी मैमल्स में ही आते हैं, ठीक है। सो एलिफेंट आर द लार्जेस्ट मैमल ऑफ इंडिया एंड दे आर मेनली फाउंड इन द वाइल्ड एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, असम, सेंट्रल इंडिया, कर्नाटका एंड केरला। तो एलिफेंट ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, सेंट्रल एशिया आदि शहरों में ये पाए जाते हैं। राइनोसेरस दैट आर फाउंड
in Assam and West Bengal are the second largest mammal. तो rhinoceros है second largest animal, while wild buffalo is found in छत्तीसगढ़ and Assam. जंगली buffalo, जंगली भैंस कहाँ छत्तीसगढ़ और असम में मिलती है. The Himalaya region are the home of wild goats and snow leopard bears. तो हिमालय में मिलती हैं जंगली बकरियां और वहाँ पे स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं क्योंकि बहुत वहाँ पे बर्फ होती है, स्नो लेपर्ड्स. ठीक है. देन कैमल एंड वाइल्ड एसेस आर द मोस्ट कॉमन एनिमल ऑफ थार डेजर्ट एंड द रन ऑफ कच्छ. तो कच्छ में और थार डेजर्ट में ज़्यादातर कैमल्स और जंगली गधे मिलते हैं, वाइल्ड एसेस वहाँ मिलते हैं. देन वी हैव टाइगर एंड लायंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्निवोरस ऑफ इंडिया. तो मोस्ट कार्निवोरस इम्पॉर्टेंट कार्निवोरस क्या है? टाइगर है एंड लायन है. टाइगर इज अ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया एंड दे आर फाउंड इन द हिली एरिया ऑफ हिमालयन माउंटेन. इन मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल वाइल लायन एंड आर फाउंड इन गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात. तो लायन कहाँ पे है? गिर फॉरेस्ट गुजरात में. और टाइगर्स कहाँ कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, हिमालयन माउंटेन्स में, उत्तराखंड में ये मिलते हैं. इंडिया इज ऑल्सो हैबिटेट ऑफ वेरियस अदर एनिमल्स लाइक मंकीज, मोल्यूस, जैकल्स, नीलगायस, चीता एक्सेट्रा. तो और भी कई तरह के मंकी, नीलगाय और जैकल्स वगैरह यहाँ देखने को मिलते हैं. एंड इंडिया इज ऑल्सो फेमस फॉर रेप्टाइल्स, स्नेक्स लाइक कोबरा एंड पाइथन आर न्यूमरस. इंडिया इज द होम ऑफ किंग कोबरा. किंग कोबरा का घर है हमारा प्यारा इंडिया. और यहाँ पे पाइथन जैसे सांप भी जो कि बहुत जहरीले होते हैं देखने को मिलते हैं. एंड क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स, टॉर्टोइज एक्सेट्रा आर सम varieties of reptiles found in India. Then we have birds. India is also a large number of species of bird. तो यहाँ पे बहुत एक बड़ी species मिलती है birds की. India and jungle fowls आर द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड ऑफ इंडिया. तो पिकॉक और जंगल फाउल यहाँ के सबसे ब्यूटीफुल बर्ड है. एंड ए पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. अदर कॉमन बर्ड्स फाउंड इन इंडिया आर पिजन, पैरट्स, मैना एंड गीज, बुलबुल, डक्स. तो ये कुछ और जो बर्ड्स यहाँ पे मिलते हैं. एंड साइबेरियन क्रेन, स्टॉक, फ्लैमिंगो, पिनटेल, पेलिकन, डक, curlew etc. are the main migratory birds. Siberian cranes came from Siberia and stay in India from the December to March. तो ये कुछ हमें फ्लैमिंगो क्रेन है, साइबेरियन क्रेन है, ठीक है, ये सब क्या है, ये माइग्रेटरी बर्ड है. यानी जब इनके रीजन में लाइक साइबेरियन क्रेन जो है वो साइबेरिया में जब वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम गर्मी होती होगी या एक्सट्रीम सर्दी होती तो ये इंडिया फ्लू करके आ जाता है, ठीक है. और फिर जब यहाँ पे मौसम इसके अकॉर्डिंग नहीं होता तो ये वापस से फ्लू करके वहाँ चला जाता है, ठीक है. तो these are migratory bird. Protecting wildlife. The wildlife is our heritage, and but some greedy people are engaged in reckless cutting of trees and hunting. They are destroying forest, and that is why several species of wildlife of India are declining rapidly. Some species are at the verge of extinction, whereas several species have already become extinct. So it is necessary to preserve all species of animal for the future generation. तो हमने देखा कि हम जो हैं ह्यूमंस अपने फ़ायदे के लिए हम पेड़ काटते हैं, हम जंगलों को तबाह कर देते हैं, और जंगल तबाह होते हैं तो अल्टीमेटली बहुत सारी जो वाइल्ड स्पीशीज़ हैं वो भी तबाह हो जाते हैं, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाती हैं. तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और कुछ और स्पीशीज़ हैं जो एक्सटेंशन पे हैं. तो हमें इस चीज़ से रोक लगानी होगी. टू प्रिजर्व द प्रीशियस वाइल्ड लाइफ द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द इंडिया बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इन 1952. द कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज द मेन एम ऑफ द बोर्ड. तो हमने इसके लिए किया है, प्रिजर्व किया है अपने वाइल्ड लाइफ को, ठीक है. और ये बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ 1952 ने डिसाइड किया कि हम अपने जो जंगल्स हैं उनको प्रिजर्व करेंगे. टू मीट दिस एम द बोर्ड हैज़ क्रिएटेड सेवरल नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है. तो इसके लिए बोर्ड ने क्या सेवरल पार्क्स बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जहाँ पे इन स्पीशीज़ को किया रिजर्व. Then we have national park are the areas where various species of animal live freely, and these parks are strictly prohibited for human activities like hunting, shooting, tourism, research, etc. Some of them are Dudhwa National Park, Uttar Pradesh; Gir National Park, Gujarat; Kaziranga National Park, Assam; Shivpuri National Park, Madhya Pradesh; and Bandipur National Park, Karnataka. तो हमने कुछ नेशनल पार्क रिजर्व किए हैं जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं हो सकते हैं, वो सिर्फ एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना के लिए वो रिजर्व है, ठीक है. और इनके कुछ नाम आपको यहाँ दिए हुए हैं. Then next we have wildlife sanctuaries are the wild areas that are created to protect
certain selected species in their habitat, and these areas are not much prohibited for human activities, that is grazing, collection of forest products etc. is allowed. तो ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये भी जो लोकल एरिया में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनके लिए रिजर्व की गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ प्रोहिबिट नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ग्रेजिंग वगैरह करा सकते हैं एनिमल्स को, ठीक है, और जो वाइल्ड प्रोडक्ट, जो कलेक्शन फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनको यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। देन सम ऑफ देम आर सरिस्का राजस्थान, मनस असम, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, मुदुमलाई तमिलनाडु एंड रंगनगिटू इन कर्नाटका। तो ये हमें कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम दिए हुए हैं। देन बायोस्फीयर रिजर्व अदर एरियाज विच आर मेंटेन इन देयर नेचुरल स्टेट्स टू कीप द नेचुरल इकोसिस्टम अनडिस्टर्ब। तो बायोस्फीयर जो रिजर्व हैं यहाँ पे हम रखते हैं ऐसे एरियाज जो हम इकोसिस्टम को अनडिस्टर्बली हम नहीं करते हैं, मतलब अनडिस्टर्ब किए बिना हम यहाँ पे इनको रिजर्व करके रखते हैं। इन द बायोस्फीयर रिजर्व्स बोथ द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों ही प्रोटेक्ट करके रखे जाते हैं। And these reserves can be used for agriculture purpose by local people. Tourism is allowed in these reserves. Then some biosphere reserve in India are Nilgiri, Kanchenjunga, Nanda Devi, Nokrek, Great Nicobar, Gulf of Mannar, Manas and Sundarban, Simplipal, Panchmarahi, then Agastyamalai, Dihang, Dibang, Dibru Sahikhova and Achanak Kamar and Amarkantak। तो यहाँ पे हमें कुछ बायोस्फेयर्स के नाम दिए हुए हैं। Some specific projects are also introduced by the Indian government. These are the Project Tiger, Project Elephant and Project Rhinoceros। तो टाइगर, एलिफेंट और राइनोसोरस को रिजर्व की स्पीशीज को एक्सटेंड होने से बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्रोग्राम चलाए हैं। एंड वी शुड क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस ऑफ कंजर्व एंड द हैबिटेट ऑफ एनिमल एंड बर्ड। देन इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ वी शुड रिफ्यूज टू बाय थिंग्स मेड अप ऑफ एनिमल बोन्स, होन्स, फर, स्किन एंड फेदर्स। तो वाइल्ड लाइफ को रिजर्व करने के लिए हम एक छोटा सा स्टेप उठा सकते हैं कि जो एनिमल्स की स्किन से जो चीज़ें बनती हैं, लाइक जो जैकेट्स बनते हैं, जो पर्स बनते हैं, जो शूज़ बनते हैं, लेदर्स जो इसमें यूज़ होता है, वो हम अगर उसको हम डिक्लाइन कर देंगे तो एनिमल्स को नहीं मारा जाएगा। Then we have some keywords. Weather, it is the sum total of the day-to-day condition of the atmosphere at any place. Climate, it is the average state of weather condition over a long period of time. Lu, hot and dry winds blow in the northern plains in summer season. Natural vegetation, the group of plants which have developed in an area without human interference. The national park areas where various species of animals live freely. Wildlife sanctuaries, area that are created to protect certain selected species in their habitat. Biosphere reserve area which are maintained in their natural state to keep the natural ecosystem undisturbed. Then point to know, weather refers to the sum total of the day-to-day changes in the climatic condition of the atmosphere at any place. Climate refers to the average weather condition prevailing at a place recorded over a long period of time. Then climate of India is influenced by the latitudinal extent, distance from sea, altitude, northern mountains and monsoon winds. India has 4 major seasons, that is winter, summer, monsoon and retreating monsoon. The varying climate and soil result in different types of natural vegetation in India. The natural vegetation of India is divided into 5 types: tropical rainforest, tropical deciduous forest, desert vegetation, mountain vegetation and mangrove forest. Then India has a very large number of species of animal and birds. So I hope children you really enjoy that chapter. Now do practice.